Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Hello, let's okay. Sir. So in okay. So in today's class, we are going to discuss about mole. What is Avogadro's number? How do it relates to atomic mass? What are these concepts like? Right. So objective of this session is to define and memorize the Avogadro's number because it is very important number in chemical reactions and convert between the number of moles and the number of atoms in a given substance using Avogadro's number, and then to calculate the molar mass of an element or a compound. So, why do we use mole? What is mole? What is the necessity? So, the chemical changes observed in any reaction involve the rearrangement of billions of atoms, right? Because you have independent, suppose in H2O in water, the formula is H2O. So, uh, before bonding there were two separate hydrogen atom and one oxygen atom. When they attach, now there is a molecule containing one oxygen atom and two hydrogen atoms, so they bond together, they stick together, and this is how their rearrangement works. So it is impractical to try to count or visualize all these atoms, right? Because atoms are very small, so it is very hard to count how many atoms are there. But scientists need some way to refer to the entire quantity, right? They also need a way to compare these numbers and relate them to the weights of the substances which they can measure and observe. So the solution is the concept of mole, which is very important in quantitative chemistry. Okay, because we cannot individually see or weigh a molecule. Okay, we cannot individually do that. So that is why this concept of mole came about. What is a mole? A mole is the SI unit used to measure the amount of a substance. It is used to measure large amounts of very small things like atoms, molecules, formulas, units, etc. And its abbreviation is MOL. So what is a mole? It is an SI unit used to measure the amount of the substance. It is similar to like a dozen. What what does dozen mean? Dozen is also a unit to measure the amount of substance. If we are talking about bananas, so dozen banana means 12 bananas, right? So as dozen is a unit of measurement or of counting, similarly is the mole. But mole is used when the substance is very small, okay, and when we have a very large amount. So for the atoms, molecules, and formula units, we use the mole. So how big is a mole? One mole of hockey puck would equal the mass of the moon. Okay, so if we take, uh, suppose if we take hockey ball equal to how many hockey ball equal to one mole, because what is a mole? Mole is a specific amount. Mole is a specific amount. Like what is a dozen? Dozen is a specific amount. What is that amount? 12, right? So mole is also a specific amount. So if we take a mole of a hockey ball, it would amass up to the weight of the moon or mass of the moon. That's how large the mole is. Okay, मोल का नंबर कितना होता है? बहुत ज़्यादा। जैसे डज़न में तो जस्ट 12 है, डज़न इज़ इक्वल टू 12, बट मोल इतना बड़ा है कि अगर आप एक हॉकी बॉल का जैसे एक मोल ले लें, है ना? एक मोल ले लें आप एक हॉकी बॉल का, तो इतना ज़्यादा अमाउंट है एक मोल की, उस हॉकी बॉल्स का वेट कितना हो जाएगा आपके मून के वेट के बराबर। तो ए मोल ऑफ द बास्केटबॉल वुड फिल ए बैग द साइज़ ऑफ द अर्थ, है ना? अगर हम एक ही मोल आपका बास्केटबॉल ले लें, ना, एक मोल, तो वो अर्थ को फिल कर देगी पूरा, इतना सारा अमाउंट है मोल।
मोल ऑफ पेनीज वुड कवर द अर्थ 1/4 ऑफ ए माइल डीप। ठीक है, अगर हम पेनी, पेनी बोलते हैं किसी सिक्के, है ना, सिक्के, अगर we if we take 1 mole of those pennies it would cover the earth कितना 250 मीटर डीप, इतना थिकनेस में वो कवर कर देगी अर्थ को, इफ वी टेक टू 1 मोल ऑफ पेनी। so like I said, like 1 dozen donut mean 12 donut, 1 pair of shoes mean 2 shoes, 1 gross of pencil means 144 pencils. What are these measures? These are measures of number. They represent certain number. Doesn't represent 12, pair represent 2, and here gross of pencil is representing 144 pencils. So these all are measure of quantity or here number. Mole is also a measure of number. Okay, so a mole is used to count in the same way that the dozen, pair or gross is. It always equals the same quantity. तुम जब भी डजन बोले, चाहे हम वो even if we say dozen of basketball or dozen of banana, dozen of बेसबॉल, जितना भी बोले, लेकिन उसका क्या मतलब है कि 12, 12 अमाउंट की, 12 अमाउंट ऑफ बास्केटबॉल, 12 अमाउंट ऑफ बनाना, 12 अमाउंट ऑफ योर टेनिस बॉल और समथिंग। ओके, सो व्हेन डजन जब ये बोले तो इक्वल अमाउंट मीन्स 12 12, वेट इक्वल नहीं, वेट एक ही डजन का एक केस में अलग होगा, दूसरे केस में अलग होगा, क्योंकि डजन तो जस्ट काउंटिंग कर रहा है। दिस इज द मेजर ऑफ जस्ट द अमाउंट इन द सेंस ऑफ काउंटिंग, ये कितनी चीज़ें हैं, 12 चीज़ें हैं, है ना। तो डजन एक केस में अलग हो जाएगा, जैसे कि बास्केटबॉल के केस में एक डजन का अलग वेट होगा, बनानास के केस में एक डजन का अलग वेट होगा, राइट। तो एवोगैड्रो केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ए मोल। 1 mole is equal to Avogadro's number, right, and 1 mole is equal to 6.02 into 10 raised to power 23 particles. Those particles could be atoms, molecules or formula units. ओके, तो जैसे एक डजन आपका कितना हुआ 12, वैसे एक मोल आपका कितना हुआ एवोगैड्रोज नंबर के बराबर है, और एवोगैड्रोज नंबर कितना हुआ 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो जो 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स है, दिस इज इक्वल टू मोल। तो आप चाहे एवोगैड्रोज नंबर बोलो, चाहे 1 मोल बोलो, तो एक ही चीज़ हुई। एवोगैड्रोज नंबर है, मोल उसका यूनिट है, समझ रहे हैं। एवोगैड्रोज क्या है, अमाउंट, नंबर, और मोल क्या यूनिट। जैसे डजन क्या है, यूनिट, अमाउंट कितना है 12। तो देख लो, ए मोल ऑफ एप्पल means 6.02 into 10 to the power 23 apples. So how many marbles are in 1 mole of marbles? There would be 6.02 into 10 to the power 23 marbles. How many balloons are in 1 mole of balloon? Again 6.02 into 10 to the power 23 balloon. How many molecules are in 1 mole of C12H22O11? What is this formula? This is the formula of sugar, I think. Yeah. So if how many molecules in 1 mole of C12H22O11 or sugar? It is 6.02 in 10 to the power 23. Okay. यस सर। हेलो, हेलो, सर। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, ओके, ओके। तो एटम्स का आपको पता है, मॉलिक्यूल्स का पता है, अब यू में कंफ्यूज इन फार्मूला यूनिट। इट इज़ नथिंग। जैसे मैंने आपको अभी शुगर का फार्मूला बताया, सो फार्मूला यूनिट बोलेंगे। मॉलिक्यूल्स यहाँ टर्म यूज़ करी जा रही है जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जैसे Cl2, क्लोरीन का क्या फार्मूला होता है, Cl2, इकट्ठे आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना, Cl2 मॉलिक्यूल बना देते हैं दो। तो कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए मॉलिक्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, और जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है आपके जैसे शुगर, उसके लिए फार्मूला यूनिट्स का यूज़ कर रहे हैं ये। ठीक है।
1 molar mass is the mass of 1 mole of substance. Okay, so whenever you see the term molar mass, that means mass of 1 mole of the substance. So if I say 1 molar mass of hydrogen, so that means mass of 1 mole of hydrogen, or in other words, mass of 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of hydrogen, or molecules of hydrogen, if you are talking about H2. So that many amount of molecules. Okay, molar mass of an elephant in grams is equal to, sorry, not elephant, what I am saying, uh, molar mass of an element in grams is equal to 1 mole. Molar mass of compound in grams is equal to 1 mole. Okay, so mole is also unit of mass, but but this mole is written as mole, and the other mole was written as mol, just mol. The mass, the unit the mole that we are using to represent the mass is written as mole. अब मोल बात कर रहे हैं आपके सिंपल थिंग्स के लिए, तो यहाँ इसकी एब्रीविएशन क्या होगी? नॉट सिंपल थिंग्स के लिए बट काउंटिंग के लिए, अमाउंट के लिए, है ना? तो उस तब उसकी एब्रीविएशन हो जाएगी MOL, स्मॉल MOL है वो अभी भी MOLE ही, उसी की बात हम कर रहे हैं, बट वी विल यूज द एब्रीविएशन, जैसे हम किलोग्राम की जगह केजी यूज कर रहे हैं, है ना? तो वैसे ही MOLE की एब्रीविएशन MOL यूज करेंगे। बट जब हम मास की बात कर रहे हैं, 1 मोलर मास, तो दैट विल बी molar mass of an element would be 1 mole. So now tell me, what is the atomic mass of hydrogen? What is the atomic mass of hydrogen? One. 1. Yes, sir. Okay, so what would be the molar mass of hydrogen? Molar mass of hydrogen, atom, not molecule, क्योंकि molecule में तो H2 हो जाएगा ना. Yes, sir. 1 1 what is the molar mass of hydrogen atom? नहीं hmm? नहीं पता सर। मोलर मोलर मास मैंने बोला ना, मोलर मास बोलेंगे आप मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट। तो अगर मैं यस। हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो मीन्स कितने एटम्स की बात कर रहा हूँ मैं, एवोगाड्रोज नंबर के बराबर के एटम की। तो एवोगाड्रोज नंबर कितना है आपका? 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। 20। तो यानी कि एक मोल ऑफ हाइड्रोजन, एक मोल में कितने हाइड्रोजन एटम आएंगे आपके? 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 आएंगे एक मोल में, यस सर। है ना? उनका वेट कितना हो जाएगा? 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, इतना ही वेट हो जाएगा, क्योंकि एक एटम का वेट 1 है। 6.02 एवोगाड्रोज नंबर एटम के एवोगाड्रोज नंबर एटम का वेट भी कितना हो जाएगा? एवोगाड्रोज नंबर ही यस इस सर। केस में, है ना? सो इस ओके, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा आपका? 1 मोल जो मोलर मास हो जाएगा वो होगा 6.023 इंटू, सॉरी 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 आएगा 1 मोल, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें। लेट अस सी हाउ डू you find the molar mass of element and the compounds. आपका To प्रेजेंटेशन an नहीं atom, दिख रहा। हाँ, आपका प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा सर। प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा नो सर। है? चेक अगेन, मुझे दिखाई दे रहा है। तुमने कुछ और तो नहीं क्लिक कर दिया है? इसको फिर से रिजॉइन करेगा सर। नहीं नहीं नहीं, मैं रुको, मैं फिर से एक बार इसको शेयर कर रहा हूँ। अब दिखाई दे रहा है?
अब दिखाई दे रहा है नचिकेत? अब सही है। ओके अब सही है सर। ओके ओके। तो हाउ डू यू फाइंड द मोलर मास ऑफ elements and compounds? So do an atom inventory and multiply by the atomic mass on the periodic table and add all the masses. Okay, चलो ये जो आपको था पीरियोडिक टेबल में आपको इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स के अंदर या रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर इस तरीके से आपके एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करे जाते हैं, राइट? इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस इन पीरियोडिक टेबल. तो सी इज दी what C is the symbol for the element, 6 is the atomic number, and what is 12? 12 is atomic mass. So now tell me, सी का एटॉमिक मास 12 है या 12.011 है? सी में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन शायद। तो 13 होना चाहिए था, है ना? सर नो सर, 3 प्रोटॉन एंड 3 न्यूट्रॉन। नहीं नहीं, अरे 3 प्रोटॉन है तभी तो उसका एटॉमिक नंबर 6 है. व्हाट इज योर एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर तो सर कार्बन का 6 ही। हाँ तो प्रोटॉन सॉरी जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है आपके? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नो नो नो, वो तो एटॉमिक मास होता है. आपका एटॉमिक यस नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सर। नंबर ऑफ नंबर प्रोटॉन्स या फिर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स। यस न्यूट्रल सर। एटम क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. यस सर। तो प्रोटॉन तो 6 है इसके पास, पर न्यूट्रॉन कितने हैं? अगर तो देखो 6 ही न्यूट्रॉन है, मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो इसका एटॉमिक मास होना चाहिए था 12. अगर 6 एटॉमिक नंबर है यानी कि 6 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास होना चाहिए था 13. बट इसका एटॉमिक मास देखो यहाँ कितना है, 12.011. जो हम एटॉमिक जो हम ऐड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसका सबमिशन तो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, पॉइंट्स में तो आना नहीं चाहिए, है ना? बात समझो. जब जो हम एटॉमिक मास, मैंने बताया था ना कि एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली डबल होता है, हमेशा नहीं पर मोस्टली. क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे आपके न्यूट्रॉन्स, है ना? तो वो दोनों मिलकर बना दोगे क्या, एटॉमिक मास. तो अगर 6 ही आप, इफ यू गॉट 6 प्रोटॉन्स बिकॉज atomic number is 6, atomic number is 6, so it has got 6 protons, and suppose it has got 6 neutron as well, so what would have been the atomic mass? 12. And suppose if it got 6 protons and 7 neutrons, then what should be the atomic mass? 13. 6 plus 7 13, है ना? या होल नंबर आना चाहिए था, क्योंकि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा होल नंबर होंगे. तो या फिर 12 होना चाहिए था या 13 होना चाहिए था. ये 12.011 क्या है फिर? तो देखो ऐसा है कि ये जो एटॉमिक मास आपका बताते हैं इसमें, है ना, ये होता है एवरेज. क्योंकि आप मान लो कार्बन का बहुत सारा इकट्ठा एवोगाड्रोस नंबर के बराबर आपने कार्बन एटम ले लिए, क्योंकि आप एक एक सिंगल एटम को तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, चूज नहीं कर सकते. आप तो पूरे का पूरा बंच उठाएंगे, है ना? उसमें कितने सारे कार्बन एटम होंगे, उसमें से आइसोटोप होंगे. अब एटम, कार्बन एटम के आइसोटोप पता है ना, उसमें एटॉमिक नंबर तो बराबर होगा बट एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट. समझ रहे हो? तो उनका एवरेज यस सर। प्रोपोर्शनेट कि कितना कितना जो आपने लिया है उसमें कितना परसेंट कौन सा आइसोटोप मिलता है ना? एक कौन सा टाइप का कितना आइसोटोप मिलता है, तो उसका फिर एवरेज लेके फिर ये मास निकलता है आपका 12.011. तो इसको बोल देते हैं आपका एटॉमिक मास. और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करके जो आप निकालते हो, जो होल नंबर में आएगा, उसको बोल देते हैं मास नंबर. वो आपका किस में रहेगा, होल नंबर. जैसे कि 12 13 वो पॉइंट्स में नहीं आएगा, उसको क्या बोलते हैं आप, मास नंबर. गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। है ना? तो अगर जैसे आपको बोला मास नंबर क्या है, तो वो होगा 12 या 13, है ना?
डिपेंडिंग अपॉन कौन से आइसोटोप की आप बात कर रहे यस हैं। सर। एक आइसोटोप के पास वेट आपका 12 होगा, एक के पास 13 होगा। बट ये जो एटॉमिक मास है जो पीरियोडिक टेबल में शो करा जाता है, इसमें एवरेज लेते हैं क्योंकि बड़े सारे आइसोटोप्स होंगे, तो फिर उसमें आपका वेट पॉइंट्स में आ जाएगा। 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट्स? बार बार ये यूज हो रहा था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम और मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट। तो एटम तो हमको पता है, आर यूज फॉर सिंगल एटम्स लाइक मैग्नीशियम, सोडियम, उसके लिए अगर आपके पास सिंगल एलिमेंट की बात हो रही है तो एटम्स की बात हो रही है मोल में। अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं? अगर आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है जैसे Cl2 कोवलेंट, आपको यू यू मस्ट हैव रीड इन +1 एंड +2 व्हाट आर कोवलेंट बॉन्ड्स। जो आपके शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो आपके बॉन्ड बनते हैं, जैसे कि Cl2 है ना। Cl2 आपका एक मॉलिक्यूल, एक एटम भी आपका क्लोरीन है, दूसरा एटम भी क्लोरीन है, वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, है ना। उस चीज़ के लिए मॉलिक्यूल वर्ड यूज़ कर रहे हैं। पर जो आपका थोड़ा आयनिक कंपाउंड्स हैं लाइक MgCl2 NaCl, है ना, उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फार्मूला यूनिट्स। तो 1 मोल ऑफ एटम मीन्स 6.023 into 10⁻23 atoms. 1 mole of this chlorine molecule, 1 mole of chlorine molecule would mean 6.023 into 10⁻23 molecules, है ना। And 1 mole of this magnesium chloride would mean, or 1 mole of this formula unit would mean 1 mole of magnesium chloride or MgCl2. This we have covered. This we have covered. Because atomic mass do not convert easily to gram. Because जो हमने अभी बात की, because we make a guess, not we make a guess, but as we said, as we discussed that atomic mass of carbon, if we take only a single isotope of carbon, so what would be the atomic mass or mass number? It is going to be 12, है ना। वो जो 12 तो है वो तो एटॉमिक मास यूनिट्स में है, एटॉमिक मास यूनिट में। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? 1 AMU इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 प्रोटॉन, राइट। 1 AMU इज इक्वल टू दी वेट ऑफ और मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो जो आपके पास जो 12 आप निकाल रहे हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करके, दैट इज इक्वल टू वो आपके जो आ रहे हैं कार्बन का 12, वो किस में आ रहे हैं? आपके एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में। तब एटॉमिक मास यूनिट को वेट में कैसे कन्वर्ट, सॉरी ग्राम में कैसे कन्वर्ट करा जाए? क्योंकि हम जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसमें कौन कौन से वेट यूज कर रहे होते हैं? ग्राम्स, किलोग्राम्स, मिलीग्राम्स एक्सेट्रा, है ना। एटॉमिक मास यूनिट तो हम उतना तो मेजर नहीं कर पाते। एटॉमिक मास यूनिट को या एटॉमिक मास को ग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इजी नहीं है। इसी चीज के लिए आपका एवोगाड्रोस नंबर इज बीइंग यूज्ड। तो आपका अगर कार्बन का है 12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12, या मास नंबर कितना है? 12। तो अगर हम एवोगाड्रोस नंबर के बराबर कार्बन एटम्स कोलेक्ट करें, है ना, यानी कि इफ इफ वी हैव 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स, यानी कि 1 मोल अगर हमारे पास कार्बन एटम है, तो उनका वेट कितना हो जाएगा? उनका वेट 12 ही हो जाएगा, बट इन ग्राम्स। बात समझ रहे हो? उसका जो हम बात करते हैं कि एटॉमिक वेट कितना है कार्बन का, हम बोलते हैं 12, तो वो 12 किस में है? वो है एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट। बट अगर हम एवोगाड्रोस नंबर के बराबर हम कार्बन के एटम क्या करें? कोलेक्ट करें, उनका वेट वुड बी 12 बट इन ग्राम्स। तो इस तरीके से हम एक AMU को ग्राम के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। जैसे कि आपने 12 एटॉमिक मास की मैं बात करूं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, तो आप बोलोगे 12।
मैं बोलूँ 12 क्या, तो आप बोलोगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एक प्रोटॉन का वेट हुआ एटॉमिक मास यूनिट, है ना, एक प्रोटॉन का वेट होता है एटॉमिक मास यूनिट। वो तो आप 12 जो आपने बताया वो तो एटॉमिक मास यूनिट है, वो तो बहुत छोटा, इतना कम वेट है कि उसको मेजर नहीं करा जा सकता, इतना कम वेट है वो, है ना, उसको कैसे मेजर करोगे। तो अगर आप एवोगैड्रोस नंबर के बराबर अगर कार्बन के एटम्स क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, तो कलेक्टिवली फिर मेजर करो, तो उनका वेट होगा 12 ही, जितना उसका AMU था ना 12 उतना ही, बट नाउ द यूनिट्स वुड नॉट बी AMU, नाउ द यूनिट्स वुड बी इन ग्राम, यानी कि अब उनका वेट इतना हो जाएगा कि हम उसको मेजर कर सकते हैं 12 ग्राम के बराबर। अगर आप, तो वैसे अगर आप नियोन की बात करते हैं, नियोन एटम का क्या एटॉमिक नंबर है, नियोन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 10। नियोन गॉट द एटॉमिक नंबर, सॉरी, या एटॉमिक नंबर 10। इनर्ट गैस है आपकी नियोन, है ना, फ्लोरीन के बाद। सो उसका एटॉमिक मास यूनिट कितना है, तो अगर उसका 10 एटॉमिक नंबर है तो 21 भी हो सकता है एंड 20 भी हो सकता है, बट लेट्स सपोज उसका एटॉमिक मास कितना है आपका, नियॉन का 20, 10 उसका एटॉमिक नंबर है, तो अप्रोक्सीमेटली डबल क्या उसका एटॉमिक मास, ठीक है, 20। 20 किस में है, वो है एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है ना। हम उसको करना चाहते हैं ऐसे यूनिट में, से ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि ग्राम्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर नियॉन के एटम्स आपको कलेक्ट करना पड़ेंगे। यू हैव टू टेक द कलेक्टिव मास ऑफ नियॉन एटम्स दैट number of whose should be equal to Avogadro's number, यानी कि means 6.02 into 10 is about 23 neon atoms that you weighed collectively, उनका आपने एक साथ वेट करा, उसका वेट कितना आएगा आपका, उसका वेट आएगा 20 ग्राम। ओके, दैट इज व्हाई वी यूज एवोगैड्रोस नंबर। या तो सोडियम का आपके पास Na जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास होता है आपको 23, बट दैट 23 इज इन एटॉमिक मास यूनिट 23। अगर हम एवोगैड इफ वी टेक 1 mole of sodium, then that will that that will measure equal to 23 ग्राम। एक सोडियम एटम का, एक सोडियम एटम का वेट कितना है, 23 AMU एक का। और 1 मोल सोडियम एटम का कितना होगा, 1 मोल सोडियम एटम का, 1 मोल का मतलब है वो गैड्रोस नंबर के बराबर। सो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम वुड हैव 23 बट नॉट इन AMU, 23 ग्राम। Okay, so now Nachiket, now I will ask you these questions and you have to answer this. Okay, so we are comparing two molecules, one is sugar C12H10 2O11 and another one is water H2O। तो अगर मैं जस्ट इस मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, कितना मास होगा इस मॉलिक्यूल्स का, किसका सर? इस मॉलिक्यूल का, शुगर का कितना मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर मास है शुगर का। I think so. Hydrogen 44, oxygen 16. Yeah, ये देखो, कार्बन का कितना होगा वेट, which is 12, 16. हाँ, अच्छा 12 बहुत एटॉमिक अच्छा। मास, मास नंबर 12, अच्छा, एटॉमिक का मास नंबर 12। अच्छा, ओके वेट अ मिनट, हाइड्रोजन का। वेट अ मिनट, ओके वेट अ मिनट, आई एम गेटिंग ए कॉल। ओके सर।
So carbon has an uh, atomic mass of 12, right? Yes, sir. मास नंबर की मैं बात करूं तो कार्बन का कितना है 12। और कितने कार्बन है अपने पास 12 ही कार्बन है। Yes, sir. नाउ व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1। Yes, sir. एंड हाउ Close to. मेनी हाइड्रोजन डू वी हैव 22। Yes, sir. एंड व्हाट इज द एटॉमिc mass of oxygen 16 16. Yes, sir. also। And what is the number of oxygen 11। So this will give you 12 into 12 144 plus 22 plus 176। So if you add up all this, it will give you 166 plus 176, 6 is a 12, 7 is a 14, 2 3 342। So atomic sorry molecular weight of sugar is 342। 342 what 342 atomic mass unit है ना। Yes, sir. 342 एटॉमिक मास यूनिट है आपका वेट किसका इस शुगर के मॉलिक्यूल का। एंड व्हाट इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन सॉरी वाटर H2O 2 into 1 प्लस 16 कितना हुआ 18। तो ये हुआ 18। सो 18 हो गया ना आपका एटॉमिक मास आपका हो गया 18 किस चीज का वाटर का सॉरी मॉलिक्यूलर मास आपका वाटर का हो गया 18। एंड मॉलिक्यूलर मास आपका शुगर का कितना हुआ 342 एटॉमिक मास यूनिट है ना। अगर हम यही अब 1 मोल हम शुगर लें और 1 ही मोल हम क्या लें हाइड्रो वाटर लें तो उनका वेट कितना हो जाएगा। वेट सेम रहेगा बस वो ग्राम में हो जाएगा जैसे 342 ग्राम शुगर का और 342 ग्राम वाटर का। बात समझ रहे हो। Yes. ओके तो अब आप सी इन दी पिक्चर। अब ये क्या है आपका लेफ्ट कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेम सेम में जो है कि जैसे वॉल्यूम सेम रहेगा है ना। The presentation of the या actually my laptop just shut down। I am restarting it। तो जैसे अगर बट जैसे सेम वाले कॉलम के अंदर जो भी है उनको अपने सेम रखना। ठीक है तो बोल रहा है कि अगर मास सेम रखें वेट ए मिनट। सो टेल मी इफ हमने मास सेम रखा है किसका शुगर का भी और वाटर का भी मास हमने क्या कर दिया सेम। तो बताओ कि उसमें मोल इक्वल होंगे क्या। Yes, sir. हमने मास एक ही बराबर वेट की मतलब शुगर भी ली उतने बराबर वेट का हमने वाटर भी लिया। ठीक है तो बताओ उस जो हमने क्वांटिटी ली कि शुगर की और वाटर की जिनका मास इक्वल है तो उसमें क्या मोल सेम रहेंगे। No, sir. वाई सर जब दोनों का मास डिफरेंट है सर मॉल मॉल भी तो सर अलग अलग होगा ना सर। मोल अलग अलग होगा हाँ मॉल भी क्योंकि डिफरेंट एक होगा। ओके नाउ यू आर सीइंग द स्क्रीन कैन यू सी द यस सर। स्क्रीन नाउ। ओके यस सर। सो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है
सॉरी, जैसे कि सेम सेम के नीचे जो जो भी है ना, वॉल्यूम, मास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, इसको आपने सेम मानना है। एज्यूम कि जब आपके पास वॉल्यूम सेम होगा, जब आप वॉल्यूम सेम होगा किस चीज का, शुगर का और वाटर का, तो तो 1 ग्राम होगा क्या दोनों का, मास का 1 ग्राम होगा दोनों का। हम्म। वाई नो सर। वाई सर मास जब सेम होगा तो मॉलिक्यूल सेम कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर वॉल्यूम सेम होगा ना, वॉल्यूम यानी कि आपने 1 मीटर क्यूब ही आपने शुगर भी ले ली, 1 ही मीटर क्यूब आपने वाटर भी ले लिया, है ना। 1 ही मीटर क्यूब आपने शुगर ले ली, 1 ही मीटर क्यूब क्या ले लिया, वाटर। तो उनका वेट क्या 1 ग्राम हो जाएगा ईच। नो सर। वाई वॉल्यूम सेम रहेगा बट सर वो उसका मॉलिक्यूलर मास सर जो होता है वो तो सर डेंसिटी, डिफरेंट होगा ना। हाँ यस सर। डेंसिटी, डेंसिटी क्योंकि अलग अलग है, काहे की, शुगर की और वाटर की। तो अगर आप बराबर बराबर वॉल्यूम भी ले रहे हो पर उनका वेट बराबर नहीं होगा। ओके। यस सर। ओके, वाई बिकॉज दे हैव डिफरेंट डेंसिटी। नाउ बताओ, अगर वही कि आप उसका वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम सेम है इसका, क्या बोलते हैं, शुगर का और वाटर का कंपैरिजन इसी के बीच में चलता रहेगा आपका, शुगर और वाटर में। अगर आपका वॉल्यूम सेम है तो क्या वो 1 मोल होगा, दोनों का अमाउंट 1 मोल होगा क्या। नो सर, क्योंकि दोनों के अपना अपना एक मोल का वेट अलग होगा ना सर। 1 मोल का वेट कितना होगा, शुगर का कितना निकाला है 1 मोल का वेट, 300 समथिंग था सर। 342 इन वट यूनिट्स, यस सर। किस यूनिट में। सर वेट तो ग्राम में था। नहीं नहीं, ग्राम में भी होता है, एएमयू में भी होता है। यस सर एम में। पर जब वो, नहीं नहीं नहीं, देखो जब आप मोल की बात कर रहे होगे, जब आपने 1 मोल ले लिया, 1 मोल, यस तो सर। वेट आपका किस में आ जाता है, ग्राम में। वही मैं बात कर रहा हूँ, जब आप जस्ट 1 मॉलिक्यूल लेंगे किसका, शुगर का, जस्ट 1 मॉलिक्यूल, तो उसका वेट यस कितना होगा, 342 AMU, एटॉमिक एम मास यूनिट, बहुत कम। हम उसको मेजर नहीं कर यस सकते मतलब ऐसे प्रैक्टिकली, है ना। बट जब सर। हम, आप 1 मोल ले लोगे किसका, शुगर का, शुगर के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का आप 1 मोल ले लोगे, वट वट डज दैट मीन कि आप शुगर के कितने मॉलिक्यूल्स ले लोगे, 6.02 × 10⁻³ इतने आप मॉलिक्यूल्स इकट्ठे ले लोगे, फिर उसका वेट करोगे, तो उसका वेट कितना होगा अब, उतना ही 342 ही। बट अब उसके यूनिट एएमयू नहीं रहेंगे, उसके यूनिट क्या हो जाएंगे, ग्राम। क्योंकि हमने इतने सारे हमने मॉलिक्यूल ले लिए ना, 6.02 × 10⁻23, तो काफी ज्यादा अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट है ना, तो उसका वेट किस में हो जाएगा अब, ग्राम में। तो 342 ग्राम, दैट इज द मोलर मास ऑफ शुगर, दैट इज द मोलर मास ऑफ शुगर। और वैसे मोलर मास ऑफ वाटर कितना निकला, 18। 18 ग्राम। यस सर। 18 ग्राम पूरा बताना है कि ग्राम या एएमयू। एएमयू, ग्राम। एएमयू तब, एएमयू की आप तब बात करोगे जब आप ले रहे हो एक मॉलिक्यूल का वेट, यस एक सर। एटम का वेट, एक प्रोटॉन का वेट। जब आप पूरे का पूरा आपने मोल ले लिया, तो उसका वेट वो ग्राम में हो जाएगा। यस सर। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट दैट नो, बिकॉज मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट साइजेस। तो साइज बड़ा छोटा, तो आप एक बराबर साइज का, आप चाहे एक बराबर वॉल्यूम का आप शुगर का और वाटर का आप मॉलिक्यूल लें, बट दे वॉन्ट हैव 1 मोल ईच, उसमें सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे।
ओके नाउ टेल मी, अब वॉल्यूम को छोड़ो, अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि जब मास सेम हो, जब मास सेम हो तो बताओ 1 ग्राम ईच, 1 ग्राम ईच वेट होगा। मास अगर सेम हो, जब मास सेम होगा ना तो yes, 1 ग्राम ईच होंगे वो। यस या करेक्ट, yes, क्योंकि मास का तो मतलब ही वो है, ग्राम में वही तो बात करें कि यस दैट्स व्हाट ग्राम्स आर। अच्छा अब दूसरी कंडीशन बताओ कि मास होगा तो क्या मोल सेम होंगे दोनों के। yes sir, जब मास सेम होगा दोनों का तो मोल भी क्या सेम होंगे दोनों के। मास सेम होगा तो सर नो सर, क्यों, क्योंकि एक अगर जब दोनों के मोल सेम होंगे, जैसे 1 मोल 1 मोल, तो उनका वेट yes, अलग अलग है, एक का 342 है, एक का 18 है ना, सेम मोल पे। yes, एक मोल पे शुगर का वेट 342 है और एक ही मोल पे वाटर का वेट कितना है, 18। तो yes, sir, जब मास सेम होगा तो मोल भी सेम नहीं होंगे, मोल वुड आल्सो बी डिफरेंट। ओके दैट इज करेक्ट। नाउ नंबर ऑफ मोल्स जब सेम है तो वो नाम हुआ मास। yes sir, जब नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे शुगर के भी और वाटर के भी, yes, तो दोनों का वेट 1 ग्राम होगा कि नहीं। नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम होंगे तो हम्म। सेम भी नहीं होगा सर, हाँ नहीं होगा, हाँ क्योंकि नहीं, नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो हमने देखा एक ही मोल का वेट 342 है और दूसरी साइड 18 है। अब बताओ जब नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो 1 मोल ईच। yes sir, यस कि नो। नो सर, वाई, नंबर ऑफ मोल्स जब सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल तो 1 मोल ईच होगा नंबर कि ऑफ नहीं होगा। मोल्स, yes sir, नंबर ऑफ सेम मोल्स होंगे होंगे जब, तो आप सेम स्क्रीन होंगे, स्क्रीन दिखाई दे रही है, yes sir, स्क्रीन। हाँ देखो ये है ना, ये यहाँ नंबर ऑफ मोल्स जब सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो बताओ yes sir, 1 मोल ईच होगा, दोनों की क्वांटिटी, दोनों का अमाउंट 1 मोल ईच होगा कि नहीं। सर वो 1 मोल ईच तो होगा ही सर, अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, क्योंकि वही तो मतलब हुआ इसका, वन नंबर ऑफ मोल्स yes sir, ईच है तो उसका वही मतलब हुआ कि 1 मोल ईच, की दोनों के बराबर बराबर मोल्स है। yes राइट, sir, तो होंगे, ये क्या होगा, यस। अब बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब ये सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो तो सर एक वेट बराबर होगा क्या दोनों का। नो सर नहीं होगा, ये देखो ये हमने, नहीं क्योंकि यहाँ देखो ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया है यहाँ, yes ये sir, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, इस एक मॉलिक्यूल का वेट कितना निकला, 342 AMU, yes, 342 and AMU, ये एक मॉलिक्यूल है शुगर का। वैसे ये एक मॉलिक्यूल है किसका, वाटर का, इसका कितना वेट निकला, 18, है ना। yes sir, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, नो, वेट बराबर नहीं होगा चाहे नंबर ऑफ मोल सेम हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहे सेम हो। तो नो, दे yes, हैव डिफरेंट मोलर मासेस। अब वही बताओ जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो क्या नंबर ऑफ मोल सेम होंगे दोनों के। नो सर नहीं होगा, नो, वाई, सर जब अगर दोनों के मॉलिक्यूल सेम है, मॉलिक्यूल जब दोनों के सेम है, yes, इसका मतलब सपोज अगर एक के पास 6.23 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, शुगर के पास 6.23 इंटू 10 सॉरी, शुगर के पास 6.02 इंटू 23 नंबर ऑफ क्या है मॉलिक्यूल्स, और वाट पास भी 6.023 इंटू 10⁻23 क्या है मॉलिक्यूल्स, तो उनके मोल सेम yes, होंगे कि नहीं। हम्म, yes सर होंगे, समझ रहे हो कि एक मॉलिक्यूल, एक मोल में तो मॉलिक्यूल ही तो मेजर कर रहे हैं। yes सर, मॉलिक्यूल मेजर कर रहे हैं तो सेम है, राइट, हाँ।
क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो आपका क्या है, आपका मोल है। 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल। अगला बताओ, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल, जब नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे तब बराबर मोल होंगे दोनों केस में, अलग अलग? रफ एटम्स, सर अलग अलग होंगे, क्यों? डिफरेंट हो गया सर। क्योंकि देखो यहाँ एक एक नंबर ऑफ एटम होंगे, तो बताओ वेट दोनों का बराबर होगा कि अलग अलग? सेम होगा सर। बाय नंबर ऑफ एटम, सर ये नंबर ऑफ कितने नंबर एटम ऑफ सेम एटम्स है है इसके सर, पास, कितने दोनों का तो सर, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है तो सर डिफरेंट ही होगा। हाँ, क्योंकि देखो यस सर। शुगर के पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 12 प्लस 22, 34 प्लस 34 11, 40 45। 45। 45। यस तो सर। शुगर के पास कितने एटम्स है? 45। और ऑक्सीजन के, सॉरी, वाटर के पास कितने हैं? वाटर 3। 3। थ्री यस सर। एटम्स, 3, और इसके कितने? 45। तो इसको बराबर भी कर दें, बराबर करने के लिए कितने एटम चाहिए आपको? H2O के पास 3 है, कितने तो सर और 40 दो चाहिए 42 आपको? चाहिए सर। 3, 45/3, यस सर। 15। 15 15 और आपको एस टू ओ मॉलिक्यूल से। चाहिए किस चीज के? वाटर के। एस टू ओ। वाटर के। यस सर। लेकिन तब भी वो सेम नहीं होगा, नो क्योंकि सर। यहाँ पे एटम आपके अलग अलग हैं। यहाँ पे आपके एटम कार्बन का भी है, हाइड्रोजन का भी है, तो चाहे आप बराबर भी कर लो तब भी उसका वेट सेम नहीं होगा, क्योंकि जो बराबर हम कर रहे हैं वो अलग अलग एलिमेंट के एटम है, एक एलिमेंट के एटम नहीं है। एक साइड में कार्बन है, दूसरी साइड कार्बन है ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नो। अच्छा, अब ये बताओ, जब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे तो मोल्स भी इक्वल होंगे दोनों में कि नहीं? नंबर ऑफ आइटम्स अगर इक्वल होंगे तो नंबर ऑफ, यस सर इक्वल होगा। इक्वल क्यों होंगे? सर इक्वल कैसे होगा? नंबर ऑफ आइटम्स सर अगर 15 आइटम सर एच टू ओ का है, नहीं सर तो नहीं है, क्योंकि दोनों का ज़्यादा, शुगर देखो का ना, ज़्यादा हो जाएगा। इक्वल इक्वल हाँ, इक्वल नंबर ऑफ एटम करो आप, कैसे करना पड़ेगा आपको? एक शुगर के मुकाबले आपको 15 15 वाटर लाना पड़ेगा। रखने पड़ेंगे, एच टू ओ। है ना? यस तब सर। तब दोनों का क्या होगा? आपका नंबर ऑफ एटम बराबर होंगे। यस तो सर। इनके तो मॉलिक्यूल में पहले ही फर्क आ गया। 1:15 की रेशो होगी इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, यस है सर। ना? एक मॉलिक्यूल वाटर का, 15 मॉलिक्यूल, सॉरी, एक मॉलिक्यूल शुगर का, 15 मॉलिक्यूल वाटर के। तो इनका नंबर ऑफ मोल तो कभी सेम होगा ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का तो क्या मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस केस में। जब दोनों के पास 6.02, मतलब एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होंगे, देन देयर मोल विल बी इक्वल, है ना? क्योंकि एक के पास भी एक मोल मॉलिक्यूल है, दूसरे के पास भी एक मोल मॉलिक्यूल है, बट यस दिस सर। इज नॉट द केस हियर, सो इट विल आल्सो बी नो। अगेन वही 45/3, इसका वेट 45 है, इसका 3 है। यस ओके, सर। तो या सो दैट्स इट फॉर टुडे। यस आई सर। थिंक ये आपको थोड़ी चीज क्लियर होगी, आपका मोल क्या है, मोलर मास क्या यस चीज हुई, क्लियर होगी? यस सर। यस। ओके देन,